Hello everyone, I am Abadur Rahman and today I am going to start chapter 17 Circle, Circumference and Area of class 9 Mathematics. In this chapter, we will learn about the circumference of a circle, area of a circle. So first of all discuss some formulae which are related to this chapter. We will discuss about this and then we will start exercise 17a. So what is circle? Circle is a path of a point which moves such a way that its position from a fixed point is always remain constant. मीन सर्कल इस तरीके का एक कर्व होता है, पाथ होता है जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस हमेशा सेम होती है. सर्कमफ्रेंस क्या होती है? The boundary of circle, the length of boundary of circle is known as circumference of circle. Radius, suppose it is a circle, midpoint of circle is known as center. Okay, the distance from center to the circle means your distance, it is known as radius of circle indicated by small r. And the diameter means a chord which is passing through the center is known as diameter of circle. Yes, diameter है. अब जैसे ध्यान दीजिएगा, डायमीटर में क्या हो गया, एक रेडियस यहाँ पर हो गई, एक रेडियस यहाँ पर हो गई ना. मीन्स वी कैन से दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस. ओके, डायमीटर जो है वो रेडियस की डबल होगी. अगर रेडियस हमको फाइंड करना हो मीन्स डायमीटर का हाफ कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला है. अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस मीन्स सपोज कर लीजिए ये एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मेज़र की जाए, ये लेंथ, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कल विच इज़ नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू circumference is equal to 2 pi r. R for radius. Pi means a constant ratio of circumference upon diameter. We can say that pi is equal to 22 by 7. 22 by 7 r. When we divide 22 by 7 we get 3.14. We can use both the value of pi, 22 by 7 or 3.14 according to the question. So first of all discuss some example of this exercise. Radius and 2 radius means a diameter. Now first example, find the circumference of a circle of radius 4 cm if pi is taken equal to 3.14. Okay, we know that circumference is equal to 2 pi r. Substitute the value of radius r 4 cm and value of pi already given 3.14. So we write here 2 multiplied by value of pi 3.14 and given value of r is equal to 4. Calculate these all three number, we get 25.7 centimeter. Unit of circumference is centimeter. Next question. Find the radius of a circle whose circumference is 10 centimeter. Now in this question circumference are given and find the radius of circle. We know that circumference 2 pi r. Circumference is equal to 2 pi r which is given 10 centimeter. Substitute the value of pi and r, or simply r is equal to 10 upon 2 pi and calculate this number. 2 5s are 10. 5 divided by value of pi 22 by 7. Simplify these three number, fraction. 5 multiplied by 7 upon 25 is equal to 35 upon 22. We get 1.59 centimeter as a radius. Okay, question number second type का क्या है? The diameter of a semicircular protector is 7 centimeter. Find its perimeter. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा समझ लीजिएगा पहले. Diameter of semicircular protector is 7 centimeter. Find its perimeter. पेरीमीटर का सेंस क्या हो गया? जो बाउंड्री होती है वो पेरीमीटर कहते हैं. बट अगर कंप्लीट सर्किल होता तो पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस आर सेम.
सर्कमफ्रेंस मीन्स जो कर्व्ड सर्किल की कर्व्ड बाउंड्री होती है विच इज़ नोन एज सर्कमफ्रेंस। बट इन पेरीमीटर जो भी बाउंड्री है वो पेरीमीटर होगी। बाउंड्री स्ट्रेट भी है और ये कर्व फॉर्म में भी है, तो अगर सिर्फ कर्व फॉर्म में लिया जाता तो वो सर्कमफ्रेंस कहलाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेमी सर्किल है तो एक स्ट्रेट लाइन भी मिल रही है आपको, इसलिए यहाँ पर पेरीमीटर जो होगा वो कर्व पोर्शन प्लस ये डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई? अगर कंप्लीट सर्किल होता तो सर्कमफ्रेंस होती 2 पाई आर। सेमी सर्किल है, हाफ सर्किल है, सो ओनली पाई आर होगा। कंप्लीट सर्किल के लिए होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल के लिए क्या होगा? पाई आर। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर। सो इन गिवन क्वेश्चन diameter r is equal to 7 centimeter, so radius 3.5 centimeter. Diameter is equal to twice of radius, or you can say that radius is equal to half of diameter. Now half circumference pi r होता है, so 22/7 into value of r we get 11 centimeter. अब ध्यान दीजिएगा, ये हाफ सर्कमफ्रेंस हो गई आपकी 11 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर मीन्स 2r, 2r मीन्स 7 सेंटीमीटर, तो 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एज ए पेरीमीटर. Example number 4. A wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. It is rebent into square form. Determine the length of the side of the square. इन्होंने कहा है एक वायर सर्कुलर शेप में है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है और उसी वायर को रीबेंट किया जाता है, दोबारा मोड़ा जाता है किस शेप में? इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, मीन्स उस स्क्वायर की साइड क्या होगी. तो एक चीज़ ये समझिएगा, अगर से वायर सर्कुलर शेप में था तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस कहलाएगी ना. तो अगर रेडियस मालूम है तो सबसे पहले सर्किल की सर्कमफ्रेंस मालूम कर लें तो वायर की लेंथ हमको मालूम हो जाएगी. इन्होंने क्या वायर की लेंथ के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2 पाई आर. वी नो दैट r इज इक्वल टू 27, सो सर्कमफ्रेंस आर लेंथ ऑफ ए वायर इज़ 176 सेंटीमीटर. ये तो वायर की लेंथ हो गई. अब क्या किया, इसी वायर को इन्होंने स्क्वायर फॉर्म में रिबेंट कर दिया है. तो जो इसकी लेंथ होगी वायर की इन सर्कुलर शेप, वही लेंथ से तो एक स्क्वायर बना, तो इसकी सर्कमफ्रेंस और इस स्क्वायर की पेरीमीटर सेम होगी. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, ये हमने इससे पहले के क्लासेस में पढ़े हुए हैं. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड मीन्स 176. सो साइड इज इक्वल टू 176 अपॉन 4, 44 सेंटीमीटर. सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे एक और बात कह देता, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, यहाँ तक तो था, इसके आगे अगर बोल देता एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑल्सो, मीन्स स्क्वायर का एरिया भी आपको फाइंड करना होता. तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, दोनों साइड सेम होती है, सो साइड स्क्वायर हो जाएगा. तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 44 वी गेट द रिजल्ट. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 17A. फर्स्ट क्वेश्चन, पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. पाई की वैल्यू यही आपको यूज़ करना है. वैसे जो क्वेश्चन में देगा उसके अकॉर्डिंग हम पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे. अगर से 3.14 के फॉर्म में दिया है तो 3.14 यूज़ करेंगे, 22/7 के फॉर्म में दिया है तो 22/7 यूज़ करेंगे. दोनों वैल्यू सेम होती है बट कैलकुलेशन ईजी हो जाता है गिवन वैल्यू से सॉल्व करने पर. फाइंड द सर्कमफ्रेंस of the circle whose diameter are 49 centimeter. Diameter means 2 into r, 2 into radius. So अगर diameter 49 है तो radius क्या हो जाएगा? 49/2. अब आपको radius मालूम हो गया, circumference का फॉर्मूला होता है 2 पाई r. इसमें ला के रख देंगे तो हमको circumference मालूम हो जाएगा. Now let's see the solution of third part of question number 1. Okay. Here diameter given 9.8 centimeter and we know that diameter is equal to twice of radius. So 2 into radius is equal to 9.8. Radius is equal to 9.8/2 or 4.9 centimeter. It is the value of radius. Now we know that circumference is equal to 2 pi r. 2 pi and radius. Substitute the value of pi and r. 2 pi is equal to 22/7 and radius 4.9. Right here 7 is 49, so 0.7. Now multiply 2 multiplied by 22.07, multiply all three number, we get result here. Okay,
Now same as you can solve remaining part of the question number 1. So everyone complete all the question, solve all the question. Second question, find the circumference of a circle whose radii are given. अब फिर से हमको सर्कमफ्रेंस मालूम करना है जिसकी रेडियस मालूम है. ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, डायमीटर मालूम थी, तो डायमीटर से पहले क्या किया था, रेडियस फाइंड कर लिया था. अब यहाँ पे रेडियस ऑलरेडी गिवन. फर्स्ट रेडियस 7 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. ऊपर के मेथड पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. पाई एंड आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सपोज रेडियस आर इज इक्वल टू गिवन 7 सेंटीमीटर, circumference is equal to 2 pi r. Substitute the value of pi 22/7 and value of r is equal to 7. Calculate the numbers, we get result, and you can solve remaining part of the question with the help of this formula. Same as find the circumference of the circle if radius are given. अब यहाँ पे देखिएगा पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 दिया है, तो r मालूम है 4.5 सेंटीमीटर एंड पाई इज इक्वल टू 3.14. Apply the formula of circumference 2 pi r and substitute the value of r and pi in this formula and calculate the number, we get result. Now start question number 4, first part. In fourth question, first part, circumference of a circle is given 8.8 centimeter. We know that circumference is equal to 2 pi r. No? So substitute the value of pi 22/7. R is equal to, cross multiply, calculate the relation, 7 multiplied by 8.8 and 2 into 22 divide here. Okay, now calculate 22 into 2, 44. Now 44 to the 88, so 0.2 multiplied by 7, otherwise we get R is equal to 1.47. Okay, now आपसे डायमीटर पूछा गया है, R is equal to 1.4 है, so here R is equal to 1.4, 2 into value of R, multiply the is equal to 2.8 centimeter. Same as you can solve question number 5 also. In this question, radius are given. Suppose radius is equal to 11 centimeter. Find the circumference. Apply the formula of circumference is equal to 2 pi r and substitute the value of radius and calculate the substitute the value of circumference and calculate the radius. Now question number 6, find the radius of a circle if circumference is 100 meter and pi is equal to 3.14. Let's see the solution of sixth question second part. Sixth question second part, 6.4 decimeter. Okay, pi is equal to 3.14 given and circumference is equal to 6.4 decimeter. We know that circumference is equal to 2 pi r, so 2 pi r is equal to 6.4. Substitute the value of pi is equal to 3.14, r 6.4. So r is equal to 2 and 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1.02 डेसीमीटर. ओके, सेम एज यू कैन सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. In question number 7, the diameter of Venus planet is 12,278 kilometer. Here diameter given in the form of kilometer. So first of all find the radius of the planet. Radius of planet means divide the given number 12278 divided by 2. We get the radius. Okay. Now if we know the radius, find the circumference. Formula of circumference is equal to 2 pi r. Substitute the value of r and calculate the circumference of the Venus planet. Now question number 8, first part, find the perimeter of semicircular plate of radius 3.85 centimeter. अब देखिएगा सेमी सर्कुलर प्लेट एक है इस तरीके की, तो अभी इस एग्जांपल में जैसे डिस्कस किया था कि अगर से रेडियस पेरीमीटर की बात होगी तो ये पेरीमीटर हो गया ये प्लस ये, तो एक कर्व पोर्शन की सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, ओनली पाई आर. कंप्लीट सर्किल होता तो 2 पाई आर. ओके, एंड डायमीटर मीन्स 2 आर. सो बाउंड्री ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू पाई आर प्लस आर मीन्स ये 2 आर. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2 आर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई एंड वैल्यू ऑफ आर. Calculate the relation. We get the perimeter of semicircle.
Try to solve this question, substitute the value of r and pi, you get result. In this question, if you want, substitute the value of pi is equal to 22/7. It is better because 3.85 divided by 7 calculate करना easy हो जाएगा. Now second part of this question, it is also a good question. The circumference of a circle exceed the diameter by 16.8. Means circumference diameter से कितना ज़्यादा है? 16.8. Find the radius of the circle. So first of all, write this condition in the form of expression. Algebraic expression. Circumference is equal to diameter plus 16.8. Circumference is equal to 2 pi r and diameter 2r. It is given that circumference is 16.8 more than its diameter. So circumference is equal to diameter plus 16.8 क्योंकि ये ज़्यादा है. Now substitute the value of r. इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं. 2 into 22/7 r and ये minus 2r. Take 7 as LCM. 7 2 is 14r. 44r minus 14r is equal to 16.8. r calculate this number. 30 upon 7 r is equal to 16.8. r simply r is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड कर लेंगे. आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट बुक में मिल रहा है 3.92. सो ये पॉसिबल है 3.92 आपको भी मिल जाए. ओके. Now next question. Question number 9. A wire is in the form of circle of radius 42 cm. It is bent into a square. Determine the side of a circle. Means एक सर्किल मालूम है जिसकी साइड ऑफ द स्क्वायर, एक सर्किल मालूम है जिसकी रेडियस आपको मालूम है 42 सेंटीमीटर. अभी एक एग्जांपल में डिस्कस किया था कि अगर सर्किल को रीबेंड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, सो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ square. So first of all find the circumference of circle. Suppose ये कोई सर्किल है, इसकी रेडियस दी गई है 42 सेंटीमीटर. ओके. और एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया. सपोज कर लीजिए स्क्वायर की साइड ए है, तो जो इसकी लेंथ होगी वायर की, वही वायर तो इस फॉर्म में चेंज किया गया. तो यानी कि इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस 2 pi r इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू साइड. ओके. आप जैसे शॉर्ट में लगा रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल में डिस्कस किया, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 pi एंड r इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. मीन्स साइड इज इक्वल टू 2 multiplied by 22 multiplied by 6 upon 4. 66 सेंटीमीटर. आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द साइड ऑफ स्क्वायर. सो इट इज़ योर आंसर. साइड ऑफ स्क्वायर इज 66 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9. या इट इज़ करेक्ट आंसर. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10th. In figure 17.05 the radius is 3.5 centimeter. ये इसका फिगर. Find the perimeter of a quarter of the circle correct to the 1 decimal place. Perimeter पूछ रहा है. Perimeter means इस ये पोर्शन ये कितना हो जाएगा? कंप्लीट सर्किल का 2 pi r होता सर्कमफ्रेंस. ये क्वार्टर सर्किल है मीन्स 2 pi r डिवाइडेड बाई 4. ये हो जाएगा आपका 2 pi r डिवाइडेड बाई 4 मीन्स pi r अपॉन 2. pi r अपॉन 2 ये पोर्शन हो गया. ये कितनी है रेडियस? ये कितनी है रेडियस? ठीक है ना. तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा r प्लस pi r अपॉन 2. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर? r प्लस pi r अपॉन 2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r एंड pi. कैलकुलेट the fraction result expression, we get the result. Now question number 12th. 12th question. A garden roller has a circumference of 3 meter.
हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज इट टेक इन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह क्या रहा है आपसे पहले ये समझिएगा। इन्होंने कहा किसी गार्डन रोलर, जो रोलर होता है इसे पिच उच बैलेंस की जाती है, ग्राउंड को लेवल किया जाता है, उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 3 मीटर है, तो वो कितने रिवोल्यूशन लेगा अगर से उसको 21 मीटर डिस्टेंस कवर करनी हो। क्लियर? सपोज ये आपकी पेन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो सरकमफ्रेंस इसकी क्या होगी, ये जो बाउंड्री पोर्शन है ये सरकमफ्रेंस कहलाएगा। अब इन्होंने कहा है कि अगर से किसी पेन को इस पे रोल किया जाए तो एक सर्किल में पेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? इन ए सर्किल पेन कवर डिस्टेंस बाय देयर सरकमफ्रेंस, जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी वो उसके एक रिवोल्यूशन में कंप्लीट डिस्टेंस के इक्वल होगा। इन्होंने कहा अगर से 21 मीटर डिस्टेंस कवर किया था तो उसने कितना रिवोल्यूशन कवर किया, रिवोल्यूशन मूव की होगी। तो सबसे पहला काम सरकमफ्रेंस और टोटल डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें डिवाइड करके तो हमको मालूम हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है। सरकमफ्रेंस गिवन 3, ये ज़रूरत नहीं है रेडियस की। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, ये याद रख लीजिएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। cover distance 21 centimeter and 21 meter and circumference given 3 meter. So calculate these 3 7s as 21. So number of revolution is equal to 7. It is your answer. Now question number 13th. In 13th question, a bicycle wheel diameter 70 centimeter is making 25 revolution in 10 second. What speed in kilometer per hour? एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में है, टाइम सेकंड के फॉर्म में, और स्पीड आपसे पूछी जा रही किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। तो पहले तो हम स्पीड निकालेंगे मीटर पर सेकंड के फॉर्म में, उसके बाद चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। तो सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर के फॉर्म में ना। सो गिवन स्पीड इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ लुक हियर, आई थिंक उससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ रेडियस कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई थी। सो फिर से यहाँ पे डायमीटर 2r 70 सेंटीमीटर एंड रेडियस 35 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मालूम हो जाएगा। सरकमफ्रेंस 2 pi r, 2 into 22/7 multiplied by 35, we get 210 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 25 है, तो टोटल डिस्टेंस मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई सरकमफ्रेंस 5250 इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। चेंज सेंटीमीटर इन मीटर, डिवाइड द टर्म बाई 100, 52.50 एज ए मीटर। नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस 5250 अपॉन टाइम 10 सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड में हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया किलोमीटर पर आवर, सो चेंज मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, we should multiply it by 18 upon 5 kilometer per hour. Now calculate the result fraction, we get 19.8 kilometer per hour as a result. Question number 14, a small cart is being driven at 10 kilometer per hour. If each wheel is 91 centimeter in diameter, find the number of revolution made by the each wheel by per minute. स्पीड को पहले चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। उसके बाद सेंटीमीटर को रहने देंगे या तो फिर किसी एक को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, सो सॉल्व किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, वी गेट 25/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 मिनट गिवन, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एंड टाइम, वी फाइंड द डिस्टेंस। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सरकमफ्रेंस वही होगा जो कि डिस्टेंस कवर की जाएगी। तो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सरकमफ्रेंस। अच्छा, हमको क्या चाहिए? सरकमफ्रेंस की वैल्यू चाहिए। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस मीन्स 2 pi r, 2 pi एंड r। r की वैल्यू दी गई है ना, डायमीटर 91, सो रेडियस इज इक्वल टू 91/2 सेंटीमीटर। और इसमें लाके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और सबकी सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ओके, बट ये ध्यान दीजिएगा जो हमने वो डिस्टेंस रेडियस थी उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, 100 से डिवाइड कर लिया, तो 91 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.91। जहाँ जहाँ भी कैलकुलेट करेंगे आप अपनी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आप फ्री है।
जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहिए आप पॉइंट को शिफ्ट कर लीजिए, कहीं ज़ीरो का लगा लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा. सो गाइज, try to solve remaining part of the question. Take help with the all example, most important example. So solve all the example. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can text me. Write your comments in this video comments box. Thank you. Goodbye.